اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، میں تقریباً 45 منٹ کے 1 گھنٹے آپ سے بات کروں گا، گفتگو کروں گا. آپ قوم اور تاریخ سے تیار کیے. یوں سمجھیے کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے جو چاہتا پریکٹیکل باتیں ملیں، اس کا جو ہے کافی فائدہ بھی ہوگا. رپورٹنگ جو ہے، لیکن ایک یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک اصول ہے، انگریزی میں ہے یو دی آڈینس بفور دے لیو. سننے والوں کو آپ اس وقت چھوڑ دیجیے اس سے قبل جو آپ کو چھوڑ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت ہاتھوں سے بھی نوازا ہے. تالی بجا کر اشارہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت سن لیا، اب اللہ ہے کرو آپ اپنی تقریر کو یا اپنے بیان جو کوئی اس کو روک دیں، تو آپ کو یہ اجازت بھی ہوگی. جیسے آپ محسوس کریں کہ آپ اکتا گئے ہیں تو آپ کو کھلی اجازت ہے. میں پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو، وہاں بھی یہی اصول اپناتا ہوں. بچوں سے یہی کہتا ہوں میں کہ جب آپ کے بوریت محسوس کرنے لگیں تو آپ صاف کہہ دیجیے کہ آج کے لیے بس آج کی ملاقات بس اتنی کر لے کر باتیں چاہے جتنی. تو یہ حق آپ کو بھی ہے. رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، جو کہیں واقعہ ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے، اس کو جو ہے آپ ایک شکل میں اس کو جو پیش کرتے ہیں وہی رپورٹنگ ہے. لیکن میں زبان کے تعلق سے بہت زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رپورٹنگ کیا ہے، زبان کیسی ہونی چاہیے. ہر واقعے کی ایک زبان ہوتی ہے. شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اگر آپ کو شادی بیاہ کے معاملے میں تو اس کی زبان الگ ہونی چاہیے. کسی کی موت کی خبر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی زبان الگ ہونی چاہیے. تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان کیسی ہو. پڑھنے والا یا آپ کی خبریں دیکھنے والا، ٹیوبرس کی یوٹیوبرس کی، تو زبان کیسی ہونی چاہیے. اگر بہت زیادہ معیاری زبان ہو تو وہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جن کو اچھی زبان آتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے. جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں ان کی سمجھ بھی نہیں آتی. معیاری زبان لکھیں تو بھی مشکل، اور بازاری زبان لکھے بھی تو مشکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو ایسی زبان بہت زیادہ معیاری بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سطح سے گری ہوئی زبان بھی نہ ہو، درمیانی سطح کے ہو. ایک طرف اچھے علم رکھنے والے، اردو سے اچھی واقفیت رکھنے والے بھی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، اور جنہیں اتنی اچھی اردو نہیں آتی وہ بھی پڑھیں، سنیں، سمجھیں. یہ بہت ضروری ہے زبان کے تعلق سے. تو آپ ذرا نوٹ کر لیجیے کہ زبان نہ تو بہت زیادہ معیاری ہو اور نہ ہی بازاری ہو. زبان صاف ستھری شائستہ ہونی چاہیے. اور رپورٹنگ کے معاملے میں ایک جملہ بہت ہی اہم ہے. ہمارے مرحوم سینئر رپورٹر جو تھے علی حق صاحب ہمیشہ ایک جملہ کہ رپورٹ لکھنے والوں کو کیا لکھنا ہے اس سے زیادہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا نہیں لکھنا ہے. They should know what not to be written. لکھنا کیا ہے اس سے زیادہ کیا نہیں لکھنا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس کا بہت ہی خیال آپ رکھیں. میں خود اس کا شکار ہوا، حالانکہ غلطی میری نہیں تھی. تقریباً 4 برسوں تک
अदालत का सामना करना पड़ा। एक हमारे रिपोर्टर ने किसी साहब के मुताल्लिक जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उनके मुताल्लिक गलत गलत बातें लिखी। हमारे सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट था साहब का, गलत गलत बातें उनके ताल्लुक से लिखी और उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। अब क्या लिखना क्या नहीं लिखा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जोश में आकर जो कुछ लिख दिया। हमारे सेक्रेटरी ने उसको यूं का तू शायद कर दिया। 4 वर्षों तक अदालत, वो भी यहाँ नहीं, बीदर को जाना पड़ा। शुरू में एक पुलिस वाला आया, वारंट लेकर, अरेस्ट वारंट लेकर मुझे और हमारे ऑफिसर को सीआईउल्लाह साहब कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ और आपको हिरासत में लेने के लिए आया हूँ। अब उसको पैसे वैसे लेकर बोल के बता दो कि हम नहीं मिले। अरेस्ट वारंट जिन साहब के खिलाफ लिखा गया था, उन साहब ने मुकदमा दायर कर दिया था। 4 वर्षों तक मुकदमा चला और 2-3 बार मुझे बीदर को जाना पड़ा। तो अगर उनको ये मालूम होता कि क्या नहीं लिखना है तो ये नौबत ना आती। आप इसका खास ख्याल रखें। और आजकल तो तमाम की नजरें बिलखुसूस उर्दू मीडिया पर है। ये भी अगर मौका ऐसा मिल गया तो पता नहीं कितनी परेशानी हम लोगों को उठानी पड़ेगी। इसका खास ख्याल रखें। दूसरी बात, मैं लिखकर भी इस बात से मिल लेता हूँ कि जब यूं ही एक्सटेम्पोर जब बात करता हूँ तो पता नहीं कभी कभी बात कहीं से कहीं निकल जाती है, उसमें वक्त बहुत ज़ाया होता है। सखील अल्फाज यानी मुश्किल अल्फाज, दकीक जिसे बोलते हैं, वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जो सबकी समझ में आए। बता रहा हूँ मैं कि सबकी समझ में आना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, चाहे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो या लिख रहे हो। तो ज़बान सलीस हो लेकिन गिरी हुई ना हो। उसके बाद और आसान ज़बान लिखना उतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। आसान ज़बान लिखना ज़रा मुश्किल काम है, इसके लिए आदत डालनी होती है। मुताला बहुत ज़रूरी है, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने की आदत बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज किसी में नहीं रही, ना सहाफ़ियों में रही, ना पढ़ने वाले बच्चों में रही। बड़ी मुश्किल से स्कूल की कॉलेज की किताबें पढ़ लेते हैं, उससे हद तक कोई किताब नहीं पढ़ते। जब तक मुताला आपका गहरा नहीं होगा, ना आपकी रिपोर्टिंग में वो दम आएगा, ना कुछ कर पाएंगे। ज़बान अच्छी हो, अच्छी ज़बान के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है, एक तो क्या लिखना है वो मालूम होना चाहिए, अल्फाज कैसे हो वो लिखना आना है। तीसरी बात कि हो जाता है और सही जुमले लिखना। इमला सीखना बहुत गलत, मैं खबरें सुनता हूँ यूट्यूबर्स को, माफ करना मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलत खबरें, बहुत गलत तलफ़ुज़ होता है, उससे ज़रा बचकर रहे, इसलिए कि मेयार होना चाहिए। अगर मेयार नहीं है ज़बान में तो सुनने वाला जो है उठा जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे जुमले बोलें, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें और तलफ़ुज़ का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसके लिए क्या करना है, एक मुख्तलिफ जो चीफ एडिटर से मेरे पास, उन्होंने हमेशा एक बात कही, एक नसीहत की मुझे बुलाकर कि एक लफ्ज़ गलत लिख दिया था हमने, पता नहीं क्या है, 25-30 साल पुरानी बात है, गलत लफ्ज़ लिख दिया हमने, वो शायरी हो गया बाद में। उन्होंने बुलाकर बड़ी अच्छी नसीहत की। इस तरह एक लफ्ज़ के हिजे गलत थे, 100 आदमियों में समझो 99 लोगों ने इस गलती को नहीं पकड़ा। सिर्फ एक आदमी को मालूम हुआ, पढ़ने वालों में 99 को नहीं मालूम हुआ, सिर्फ एक आदमी को मालूम हुआ कि आपने इसके हिस्से जरूर गलत लिखे हैं। तो आप उन 99 बेवकूफ़ों की परवाह मत करो
जिस एक आदमी ने तुम्हारी गलती पकड़ी है उससे डरो। कितनी बड़ी बात है, आप समझ नहीं बात को? हाँ, यू डोंट बॉदर अबाउट दोस 99 पीपल हु हैव नॉट फाउंड योर मिस्टेक। उस आदमी से डरो जिसने तुम्हारी गलती को पकड़ लिया है, उसके डर से सही लिखो। तो 99 लोग बेकार के हैं, नहीं समझते, तुमकी परवाह हमें हमेशा मत करना चाहिए। लेकिन वो एक जो समझता है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा सही जबान लिखने की सही करो, कोशिश करो। उसके बाद जुमलों की साथ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो भी अगर ठीक ना हो तो माने कहीं के कहीं चले जाते हैं, माने बदल जाते हैं। आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। एक छोटी सी एक्सरसाइज, 3-4 जुमले आपको लिखवा रहा हूँ। तमाम उर्दू लिख सकते हैं, आप लिखिए इसको। मैंने एक किताब से लिए ही जुमले, समझाने में बड़ी मदद मिलती है। आप लिखिए प्रसाद, KR प्रसाद, के इनिशियल है वो, KR प्रसाद की क़यादत में, KR प्रसाद की क़यादत में साल 1999 में 1999 में ये वाक़या हुआ था। 1999 में रामनगरम में रूनुमा होने वाले, रामनगरम में रूनुमा होने वाले फसादात की तहकीकात के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उसकी रिपोर्ट आज जो कमेटी तश्कील दी गई थी, आज काबीना में पेश कर दी गई। दिस वॉज द न्यूज दैट वॉज अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर। इन्हीं जुमलों के साथ ये न्यूज छपी थी अखबार। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। KR प्रसाद की क़यादत में साल 1999 में रामनगर में रूनुमा होने वाले फसादात की तहकीकात के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उसकी रिपोर्ट आज काबीना में पेश कर दी गई। और ये जो सिंह बोलते हैं, सन नहीं है वो, सिंह है, देखिए तलफ़ुज़ का, सन 1999, सिंह 1999 है। अब 1999 के बजाय हमारे बहुत सारे लिखने में तो नहीं मालूम होता, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं 1990 पर लोग बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। 70 पर 5 बोलते हैं, 80 पर 5। मैं कहीं सुना हूँ सारे। प्लीज इसकी तरफ आप पूरी तवज्जो दें कि आप 73 बोलेंगे ना कि 70 पर 3, 72 बोलेंगे ना कि 70 पर 2। सुना हूँ 1999 में ये गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए। लिखने वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलने वालों को तलफ़ुज़ सही होना चाहिए आपका। लिखने वालों को तलफ़ुज़ की उतनी परवाह नहीं होती जितनी कि यूट्यूबर्स को होती है। तो मोहम्मद का मुज़क्कर का मोहम्मद भी सुना, बहुत जोर का बारिश हो रहा था, ये भी सुना यूट्यूबर पर, बारिश मोहम्मद से, बहुत जोर का बारिश हो रहा मोहम्मद से, बुखार आ गई, मुज़क्कर है बुखार आ गया, लेकिन गलत जुमले में सुनता हूँ अक्सर। और सबसे बड़ी बात, चैनल नहीं बोलते, चैनल बोलते हैं। हाँ, आप हमारा चैनल देख रहे हैं, ये चैनल CH है, ये चैनल CH जहाँ भी आता है, जरा आप चूंकि बोलने वाले हैं, CH के बारे में ख्याल रखें कि CH जो है कभी कभी काट की आवाज में आता है, केमिस्ट्री CH है, चा की आवाज में आता है, चैंपियन है, और शाह की आवाज में आता है, शेफ। तीनों CH, शेफ का CH, शेफ भी है, केमिस्ट्री CH पे का की आवाज में आता है, चैंपियन जो है CH की आवाज में आता है। ये चैनल है ना कि चैनल। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, वो नाम लेकर आप तलफ़ुज़ के मामले में आपको ज्यादा, लिखने वालों से ज्यादा अखबार के लिए जो लिखते हैं उनको तलफ़ुज़ की उतनी परवाह नहीं है, लेकिन उनका जुमले सही होना जरूरी है,
हिज्जे से ही होना जरूरी है, तलफ़्फ़ुज़ की उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो बोलते नहीं है। लेकिन आप यूट्यूबर्स ज़्यादा हैं तो आप अपनी ज़बान को सही करने की बहुत ज़रूरत है। लफ्ज़ बोलते हैं पाकिस्तान के, लफ्ज़ को इतना गलत तलफ़्फ़ुज़ पता नहीं क्या वो। कल सुन रहा था मैं एक लफ्ज़ आपको बोलता हूँ लफ्ज़ के लिए, वो उस किस्म के नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो है देखिए, आप पढ़कर देखिए क्या माने निकलते हैं इसके। मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या प्रसाद की क़यादत में, यानी फसादात की क़यादत करने वाले हो गए क्या प्रसाद। पढ़कर देखिए वही माना निकलता है इसमें। क्या प्रसाद की क़यादत में रमजुल में रूनुमा वाले फसादात, यानी फसादात करवाने वाले बन गए क्या प्रसाद। समझिए आप इसको सही कैसे लिख सकते हैं, लिखकर बताइए। कोई ये पढ़कर भी सुनाइए सही कैसे लिख सकते हैं, पूरा माना बदल जाता है इसका। तो फसादात करवाने वाले क्या प्रसाद बन गए साल 1999 में। नहीं, आप लिख दीजिए पूरे, उसके बाद कोई ये पढ़कर सुनाइए। मैं जो लिखा हूँ उसे अगर मेल खाते हैं तो ठीक है, मैं ठीक हूँ या फिर आप भी ठीक हैं, या आप ठीक नहीं तो मैं गलत हो सकता हूँ। बीच बीच में दो तीन लतीफे भी सुना लेता हूँ ताकि आपकी बोरियत ना। तो फसादात में लतीफे आ जाएंगे। साल 1999 में जी रामनगर में जी रूनुमा होने वाले फसादात की तहकीकात के लिए जी KR प्रसाद की क़यादत तश्कील की गई थी। 100% वही जुमले हैं जो मैंने लिखे हैं, सुना देता हूँ। 1999 में रामनगर में रूनुमा होने वाले फसादात की तहकीकात के लिए क्या प्रसाद की क़यादत में जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी रिपोर्ट आज काफी नाम पेश कर दी गई। 100% बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। वरना पहले जो जुमले छुपे थे ये अपर के जुमले ही, तो माना क्या निकलता है कि फसादात की क़यादत इनकी तरफ से हुई, तो जुमला ऐसा आना चाहिए था, ऐसा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे गलत जुमले आते हैं। मुफ्त आंखों का ऑपरेशन, आंखें मुफ्त हो गए ऑपरेशन। हाँ ये भी आता है, सालान में भी छुट्टी। हाँ मुफ्त आंखों का ऑपरेशन, आंखों का मुफ्त ऑपरेशन। हाँ आंखों का मुफ्त ऑपरेशन। गुज़िश्ता मरतबा जब मैं यहाँ आया था तो बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था, 2 रोज़ा सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ी 2 रोज़ा हो गए। सहाफ़ी 2 रोज़ा हो गए, याद है आपको? 2 रोज़ा सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस। माना ये नहीं करता है कि सहाफ़ी के दिन 2 रोज़े हैं, सहाफ़ियों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। 2 वहाँ आना था, 2 पहले आ गया, तो माना बदल गया कि 2 रोज़ के सहाफ़ी हैं, जबकि 37 वर्षों तक सालान का काम है। हाँ वहाँ पढ़ने के बाद 2 रोज़ा लगा। मैंने कहा कि मैं तो 2 रोज़ा सहाफ़ी नहीं, मैं तो 37 वर्ष काम किया हूँ, मैं सालान में। आप मुझे कैसा नहीं देते हैं कि 2 रोज़ा सहाफ़ी। तो सहाफ़ियों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ना कि 2 रोज़ा सहाफ़ियों की कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो वो हुआ, फिर उसके बाद जो है एक और बहुत जल्दी हमारी सिद्धरामैया से मुलाकात आते हैं, अपन आज भी आते हैं। हमारी सिद्धरामैया से मुलाकात, बेचारी सिद्धरामैया मोहम्मद सिद्धरामैया से हमारी मुलाकात, ना कि हमारी सिद्धरामैया से मुलाकात नहीं। वरना जो है सिद्धरामैया जो है सिंध बदल जाती है, मत से जो ही वो औरत बन जाती है। इसलिए क्या देखिए मैं आपको लिखने का जहाँ से निकल जाता तो ऐसे जुमले आ जाते हैं। मैंने नोट किया है, ये नोट करके लिखा रहा हमने कि कहाँ कहाँ हमसे गलती होती है अनजाने में, और माने की सतत बदल जाती है। हमारे लिए सिद्धरामैया से
हमारी मुलाकात। अब एक और जुमला पढ़ा था मैं, ये बहुत पुराना जुमला था ये। हमारी वो उस वक्त राजीव गांधी थे, वही हमारी राजीव गांधी। हाँ, और आप देखिए कि कहाँ वो हमारी के बाद राजीव गांधी से मुलाकात कहाँ हो रही है, आगे देखिए आप। हमारी राजीव गांधी से मुलाकात शहर के पैलेस ग्राउंड में 3 दिनों पर मुश्तमिल ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में, जिसकी क़यादत उस वक्त कोई सदर थे, जिसकी क़यादत ने की थी, वो डैश डैश है, समझो मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी, मैं बदला कर बोल रहा हूँ, जिसकी क़यादत मल्लिकार्जुन ने की थी। और इस सेशन के लिए डाले गए शानदार शामियाने में हुई थी। कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ हुई थी, समझे आप? हाँ, मैं और एक बार पढ़ता हूँ। हमारी राजीव गांधी से मुलाकात शहर के पैलेस ग्राउंड में डाले गए शानदार शामियाने में 3 दिनों पर मुश्तमिल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में हुई थी। अब क्यों याद रखेगा भाई, मुलाकात कहाँ थी, हुई थी कहाँ? पहले वो आप इसको कैसा लिखते हैं, लिख लीजिए। हमारी राजीव गांधी से मुलाकात, सालार का जुड़ा है सर ये, तो सर पढ़ा था नहीं, जहन में आज लिख लिया मैं, लेकिन उस वक्त कौन समझते यार, बता दिया। लिखिए, हमारी राजीव गांधी से मुलाकात शहर के पैलेस ग्राउंड में 3 दिनों पर मुश्तमिल ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में हुई थी। सदर का निकाल लिया, याद नहीं। अब इसको कैसा लिखते हैं जरा। हमारी राजीव गांधी से मुलाकात शहर के पैलेस ग्राउंड में, नहीं, अभी दूसरे भी लिख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 3 दिनों पर मुश्तमिल ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में हुई थी। अब कोई दूसरे, कोई जो साहब है उनसे हटकर दूसरे, तीन दिनों पर मुश्तमिल ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन में हमारी राजीव गांधी से हमारी मुलाकात हुई थी। ज्यादा नहीं, ठीक है, माशाअल्लाह। इत्तेफाक है आपको? इत्तेफाक? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जैसे भी नहीं, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, और अच्छा कहते। 3 रोजा जी, 3 रोज़ों पर मुश्तमिल 3 रोजा ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस सेशन में हमारी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी। राजीव गांधी से हमारी मुलाकात, मैं ऐसा लिखा हूँ। ये बोलिए बोलिए। शहर के पैलेस ग्राउंड में मुनक़िदा 3 रोज़ा कांग्रेस सेशन में हमारी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी। ये काफी आपको मिल गई थी मेरी आपको। हाँ, खूब ये हमें बहुत मिलते हैं सर। हाँ, आप ऐसे दिन साला के डेढ़ भी बन सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, वही अंदाज है मेरा लिखने का। शहर के पैलेस ग्राउंड में ऑल इंडिया कांग्रेस के 13 सेशन में राजीव गांधी से हमारी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल वही जुमले मैंने भी लिखे हैं, आपके भी जुमले बहुत मिलते जुलते हैं। कहीं एक और है, अब इसमें जरा और मुश्किल है, आप इसको कैसे आसान बना सकते हैं मैं देखना चाहता हूँ। लिखिए आप, इस पे कहा होता है बेदारी भी नहीं होती और एक तरफा भी नहीं होता, 2 तरफा ट्रैफिक होती है। जर्मनी की, ये भी किताब से लिया हूँ जुमला,
जर्मनी की एक खातून सहाफी शेरोन शेरेरोन, आप नहीं लिख सकते फारिश है, नहीं, मजबूरी है। जर्मनी की एक खातून सहाफी शेरोन जो खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी जो आता है वो एपी एसोसिएटेड प्रेस, जैसा पीटीए है यूएन है वो भी है एसोसिएटेड प्रेस एपी। जर्मनी की एक खातून सहाफी शेरोन जो खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की नुमाइंदगी में जंग ज़दा अफगानिस्तान नुमाइंदगी में जंग ज़दा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बाकायदगी से, मैं फिर दोहराऊंगा, बाकायदगी से अपनी रिपोर्टें अपने मुल्क जर्मनी को रवाना कर रही थी। हाल ही में एक हादसे का शिकार हो गई। आई विल रिपीट, जर्मनी की एक खातून सहाफी शेरोन जो खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की नुमाइंदगी में जंगज़दा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बाकायदगी से अपनी रिपोर्टें अपने मुल्क जर्मनी को रवाना कर रही थी। हाल ही में एक हादसे का शिकार हो गई। अब ये जुमला जो बेहतरीन लिखेंगे कम से कम जुमलों में, तो मैं रेकमेंड अपने तौर पर करूंगा हमारे हिसाब से कि उनको एक खुसूसी नाम 5-6 जुमलों से ज्यादा है, इसको घटाकर कम से कम जुमलों में जो लिखेंगे उनको। मैंने बहुत कोशिश करके 2 जुमलों में लिखा। इसका मतलब इतना ही निकलना है कि वो रिपोर्टिंग जंग की कर रही थी, जर्मनी की थी, हाल तक इंतकाल। उसमें देखा कि अल्फाज भी वो निकाल देना है। छपे इतने जुमले नहीं, लेकिन इसको काट छांट कर लिखना है। जर्मनी की रिपोर्टर जर्मनी के ही लिए रिपोर्टिंग करती है, इंग्लैंड के लिए थोड़ी ही करे। जंगज़दा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जरा सोच समझ कर 1-2 मिनट और ले लीजिए, आप लिखिए फिर से। जो भी बोला बैठ में बोलना ये होना यस सर। जंगज़दा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली खबररसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की नुमाइंदा खातून सहाफी शेरोन हाल ही में एक हादसे का शिकार हो गई। कितने जुमले? 3 जी। और कोई इसे कम बेटे वो बात करा सकते थे। मैं काफी वक्त तो उसके लिए आपको मेरे लेक्चर के बाद लिखवा लीजिए पूरे डिस्टर्ब बात तवज्जो पूरी उस तरफ आते लेक्चर से हट जाए। ले वो लिख दे दूँ, लास्ट बाद में लिखा कर दे दूँ, मेरी जिम्मेदारी पर।
جرمنی کی خاتون صحافی जंग जगह अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बाकायदगी से रिपोर्टिंग करने वाली एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टर शेरोन हाल ही में हादसे का शिकार हो गई, लेकिन इस बार आप मेरे साथ नहीं हैं और आप जर्मनी के खातून सहाफ़ी शेरोन बखैरगी से रिपोर्टें अपने मुल्क को रवाना कर रही थी, जो हाल ही में एक हादसे का शिकार हो गई। थोड़ा कम है और भी इसे देखा करो सर। अब सर प्लीज मैं बात में खड़ा कर दूँ बोला ना, नहीं तो हो जाए हट जाती हो। वो क्या साइन करने का है सर? सिर्फ साइन करने का। मैं करा के दे दूँ सर पूरा के सिग्नेचर तो हो जाए हट जाती हो। जब आप लोग सुन रहे मेरी जुड़ा है यहाँ तक। अब मैं जो लिखाऊँ प्लीज। जंगजदा अफगानिस्तान की रिपोर्टर हाल ही एक हादसे का शिकार हो गई है। पूरा माना भी नहीं है ना, इतना भी शार्ट कर दिया नामा तो लिखा माना पूरा, उसमें क्या क्या रिकॉर्डिंग है, जर्मनी क्या है, नामा लगाते हादसे का शिकार हुआ अफगानिस्तान की जंग। अफगानिस्तान नहीं आपकी चांस हो गई ना, यू लास्ट योर चांस। एक खातून सहाफी शेरोन अपने मुल्क जर्मनी को जंगजदा अफगानिस्तान की सूरत हाल की रिपोर्ट पेश की और हादसे का शिकार हो गई। साढ़े 3 में होता है। यस जंगजदा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बाकायदा से रिपोर्टिंग करने वाली जर्मनी की खातून सहाफी शेरोन के बाकायदगी से अपनी रिपोर्टें जर्मनी रवाना कर रही है। बाकायदा दौड़ता है और गई है बाकायदा रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके लिए बाकायदा लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसे भेजे हैं ये रिपोर्टिंग करने के लिए। फिर एक चांस। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली खातून सहाफी जो खबर रसाई एजेंसी एसोसिएट की नुमाइंदगी करती थी, जो हादसे का शिकार हुई। अब मेरा जुमला सुन लीजिए, अगर इत्तेफाक कर ले तो खुशी होगी, आप इसे इत्तेफाक ना करें तो कोई बात नहीं। सर जी सर प्लीज। जर्मनी के खातून सहाफ़ी शेरोन जो जंगजदा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बखैरगी से रिपोर्टें अपने मुल्क रवाना कर रही थी, जो हाल ही में हादसे का शिकार हो गई। और गई है रिपोर्टिंग करने के लिए, बाकायदा ही करेगी ना, इसे भेजे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो उसको बाकायदा करना ही है। अब मेरे जुमले भी सुन लीजिए। जर्मनी की एक खातून नामानिगार शेरोन एक हादसे में हलाक हो गई, जो जंगजदा अफगानिस्तान में एसोसिएट प्रेस की नामानिगार थी। जंगजदा भी आ गया, एसोसिएट प्रेस भी आ गया, जंग का वो भी आ गया, मरने वाली का भी नाम आ गया और कैसा हालात भी हो गया। सिर्फ 2 जुमलों। राइट सर, डू यू एग्री? मेरे लिए तालियां। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ फाजिल औकात में, तो सारा दिन पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आदत सी बनी है। और एक बार रिपीट देता हूँ। जर्मनी आ गया, जर्मनी की एक खातून नामानिगार शेरोन एक हादसे में हलाक हो गई, जो वो जंगजदा अफगानिस्तान में एसोसिएट प्रेस की नामानिगार थी। तो जंगजदा अफगानिस्तान में जाती है क्योंकि रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके वास्ते उससे सारे जुमले लिखने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ते ही समझ में आता है कि अफगानिस्तान क्यों गई थी, किस लिए गई थी और क्या कर रही थी, जिसके लिए खबरें लिख रही, पूरे माने आ जाती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने वाली एसोसिएटेड प्रेस जी हाँ कोई ठीक सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस अच्छा, उसके बाद जबान जो है बा माहवेरा होना चाहिए, माहवारी एतबार से सही होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। एक तो जबान कम जुमले में होना चाहिए, आसान जुमलों में होना चाहिए, ना कि तवील जुमले इस्तेमाल किए जाए। दूसरा जो है बाप मुहावरा होना चाहिए। यहाँ मिसाल के तौर पर वो 9 तो 11 हो गया, अब बजाय खराब होने को इसे 9 तो 11 हो गया, आप उसको
5 और 6 या 7 और 8 हो गया नहीं लिख सकते, 9 से 11 ही लिखना है। ये मुस्तमिल है, यही मुहावरा आना चाहिए। मुहावरों से कभी जो है आप बदल कर उसको नहीं लिख सकते। वो एक और लिखा हूँ, खून है, दूसरा उसका लफ्ज जो है सिनानिम जिसे बोलते हैं जो लहू है, उसका खून हो गया लिख सकते हैं आप, उसका लहू हो गया, उसका लहू हो गया आप नहीं लिख सकते, उसका खून हो गया ही लिखना है। ये बाब मुहावरा ज़बान बहुत ज़रूरी है, और लिखने वालों के लिए भी, अखबार वो यूट्यूबर्स के लिए भी जो अखबार पढ़ते हैं। और बेड़ा उठाने का जो बेड़ा दर्ज करते हैं वो बड़ा खराब है। मैं अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी सुनना हूँ, उन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया, बेड़े है, वो नहीं है, बेड़े अलीफ है, बीड़ा है, वो बेड़ा नहीं है। ये एक मुहावरा बना के साथ उसकी एक कहानी भी है। वो एक हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने मुहावरों की किताब में ये वाक़या दर्ज किया है कि उस जमाने में, महाभारत के जमाने में, कोई मुश्किल काम जब होता तो ये चैलेंज किया जाता कि ये काम कौन करेगा, लेकिन किसी को नाम लेकर बुलाया नहीं जाता था। अगर वो कहते कि मैं काम नहीं कर सकता तो लोग उसकी जवाबमर्दी पर शक करते थे, तो उसे क्या करते, मैदान के बीच में पांडा रखते थे, मैदान के बीच में, और जो भी नौजवान हिम्मत करता काम करने की, आकर को बीड़ा होता तो वो काम उसके सुपुर्द कर दिया जाता। वहां से बना है मुहावरा बीड़ा होता। हाँ, बेड़ा नहीं, बेड़ा तो लिंगी बेड़ा होता है, जहाँ 10-12 जहाज होते हैं वो लिंगी बेड़ा होता है, वो बेड़ा अलग है, ये बीड़ा अलग है। जो काम होता है लेकिन बेड़े अलीफ वाला बेड़ा, हाँ है वाला वो बेड़ा हो, लिंगी बेड़ा हो, जहाजों का बेड़ा वो है, वो अलीफ वाला बेड़ा जो है ये बीड़ा उठाना बोले, बेड़ा उठाना नहीं। आप भी और लिखने वाले भी अलीफ इस्तेमाल करें बीड़ा उठाने के लिए, ना कि बेड़ा उठाने के लिए बीड़ा उठाना सही है, लिंगी बेड़ा। बारिश पड़ रहा है तो पहले भी लिखा, और वाहिद जमा की गलतियां भी बहुत होती है, लिखने वाले में भी, न्यूज पढ़ने वाले में, इसका भी खास आप ख्याल रखिए। आप नोट कर लीजिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तज़कीर और तानीस जिसे होती है, जेंडर, फौजी ताकतें आगे बढ़ रही हैं, क्या सही होना चाहिए? बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रहे हैं आए हैं पर फौजी ताकतें आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, वो लिखते वक्त जो है लापरवाही का नतीजा है। जरा तवज्जो से, जरा ख्याल से लिखना चाहिए, और पढ़ने वाले तो और ज्यादा चौकन्ना हो गए पढ़ने को। उसने सारे मालूमात फराहम किए, सारी मालूमात फराहम की। एक लतीफा सुनाता हूँ बीच में कि एक गांव वाले जिनको कुछ नहीं आता था, और एक मौलवी साहब को पकड़ कर लाया। अब मौलवी साहब ने सबसे पहले तमाम को बिठाया, सबसे सामने की सब में जो है गांव के पटेल बैठे थे, जो बड़े होते हैं गाँव के पटेल। यहाँ मौलवी साहब बैठे हैं, वहाँ पूरे गाँव वाले बैठे हैं। उन्होंने एक सीधा सा सवाल किया कि इस्लाम के कितने फराइज़ हैं? अब किसी को नहीं मालूम था, पटेल साहब को भी नहीं मालूम। इत्तेफाक से पटेल साहब का बेटा जो पढ़ा लिखा था बाहर आया, वो मौलवी साहब के पीछे करके अब्बा को इशारा किया, वो उठाई की बोले 5000। इस्लाम के फराइज़ कितने हैं? 5000। तो मौलवी साहब को गुस्सा आ गया, हम लोग तो नालायक हो, मैं इस्लाम के फराइज़ भी नहीं मालूम, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, बोलकर नाराज होकर उठकर चले गए। तो बेटे ने कहा, अब्बा जान मैं पीछे से आपको बता रहा हूँ 5, आप क्यों भी नहीं बोले 5? अरे जा रहे बेवकूफ जा, 5000 को नहीं माना, हमने 5 को माना।
اس کے بعد اس نے ساری معلومات فراہم کی. اب ذرا آدمی کو وہ ہمارے سینئر ایڈیٹر سے بولتے تھے زبان کا حیضہ ہے، زبان کا حیضہ ہو گیا ہے. انتخاب کے معنی اب انتخاب کے معنی میں محمد جو ہے بدلنے کے لیے انتخاب بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن انتخاب خون سے نہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کا ترجمہ کریں گے. انتخاب خون ایک پیشنٹ کو لائے، اس کی خون کی کمی تھی جسم میں، تو اس کو خون چڑھایا گیا، تو اس کے لیے لکھے اخبار میں چھپی ہے انتخاب خون. انتخاب خون غلط ہے نا، خون دیا گیا لکھے تو بس کافی ہے. خون کی کمی تھی اس لیے ان کو خون دیا گیا، نہ کہ یہ لکھیں کہ اپنی اردو دکھانے کے لیے کہ انتخاب خون. سرخی لگائے تھے انتخاب خون، وہ ویسے بھی نہیں آنا چاہیے. یس، لفظ کا لفظ ترجمہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادہ تر ان لوگوں کے کبھی کبھی آپ انگریزی سے ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ کا لفظ ترجمہ نہ کریں. ایک لکھ لیجیے. Getting bored? Thank you. Yes. The fact that English today, the fact capacity, the fact that bomb BYB exploded in 13 places. The fact that bomb exploded in 13 places in 2 hours. In 2 hours shows that the blasts were planned. The blasts were planned. نہیں میں کیا بول رہا ہوں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے بول رہا ہوں. I will repeat. The fact that bomb exploded in 13 places in 2 hours shows that the blasts were planned. یہ آپ کو میں ترجمے کے لیے نہیں دیا، میں خود بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے. لفظ کا لفظ ترجمہ کرنے سے اس کا ترجمہ کس طرح ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ انگلش سے کمپیئر کر لیجیے، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. لفظ کا لفظ یہ حقیقت ہے کہ 2 گھنٹوں کے عرصے میں 13 مقامات پر بم دھماکے ہوئے. یہ ظاہر کرتی ہے کہ منصوبہ بند دھماکے کرائے گئے تھے. دس از ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. کبھی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ مت کیجیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انگریزی میں خبر مل جاتی ہے، اس کا جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پورا پڑھ کر اس کا مفہوم بنانا ہے، نہ کہ لفظ کا لفظ ترجمہ کرنا. دس از ویری امپورٹنٹ. ادروائز ایسا ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا. جیسا میں پڑھا، یہ حقیقت ہے. انگلش میں کیا ہے؟ دی فیکٹ دیٹ بم ایکسپلوڈڈ. یہ حقیقت ہے کہ 2 گھنٹوں کے عرصے میں 13 مقامات پر بم دھماکے ہوئے. ظاہر کرتے ہیں کہ منصوبہ بند دھماکے کرائے گئے تھے. ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کا آسان سا ترجمہ پورا پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم لکھنا ہے. اس کا ترجمہ ہے 2 گھنٹوں کے عرصے میں 13 مقامات پر بم دھماکے ہوئے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکے منصوبہ بند تھے. اب پڑھنے والے کے لیے یہ آسان ہے یا پہلا والا؟ تو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ مت کیجیے، پورا پڑھ کر مفہوم سمجھ کر لکھیے. بہت ضروری ہے. اور رموز اوصاف، پنکچویشن جسے بولتے ہیں انگلش میں، کاما فل اسٹاپ، بہت ضروری. اب ایک بڑا بہترین جملہ ہے، آپ کے لیے لکھاتا ہوں میں. لکھیے کہ پنکچویشن اگر ٹھیک نہ ہو تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. پرانے زمانے میں
घरों में बंद रखा जाता था। पुराने जमाने में ख़वातीन को घरों में बंद रखा जाता था। आप जरा इसी जुमले में रे के बाद कामा लगाएंगे, बंद किए रे के बाद, बंद रखा जाता था। घरों में बंदर रा रा जिसे बोलते हैं आप, बंदर खा जाता रा के बाद कामा लगाएंगे, वहां रुकिए फिर पढ़िए। क्या पुराने जमाने में ख़वातीन को घरों में बंदर खा जाता था। बंदर खा जाता समझ में आया? बंद रखा जाता था, रे इसे मिला लीजिए बंद के साथ, बंदर खा जाता था। अब जितना माना बदल गया, बंद रखा जाता था कहा है, बंदर खा जाता था कहा है। अब आजकल नया फैशन निकला है गूगल का तर्जुमा। अब ये गूगल का तर्जुमा भी आपको सुना रहा हूं मैं, बहुत खूबसूरत तर्जुमा है गूगल का। आप मुझे बताना चाहिए, एक गीत का तर्जुमा है गूगल का। डू नॉट लिखे लिखे, आप ये चैलेंज आपके लिए, डू नॉट give me sound from the old roads today. Do not Give me sound. Google tarjuma. Please do not give me sound from the old roads today. ये गाने का तर्जुमा है, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। क्या माने हैं वो गाने के, ये क्या है तर्जुमा? क्या सुपरदीन? Please do not give me sound from the old roads today. आज पुरानी राहों से कोई, इसलिए कि अब साउंड आवाज है, उनके पास एक ही होता है। तो गूगल में तो वो सीधा सीधा तर्जुमा कर देती, इसलिए फॉर गॉड्स सेक डोंट डिपेंड ऑन यस गूगल तर्जुमा, अदरवाइज इट बिकम्स डोंट नॉट गिव मी साउंड फ्रॉम द ओल्ड रोड्स टू द आज पुरानी राहों से। इसके अंदर कितने माने ही वसी उस जुमले में, और इन मानों में क्या है, डू नॉट गिव मी साउंड फ्रॉम द ओल्ड रोड्स टुडे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तेरे हम चाहें गुलाबी कमोदी, व्हाट आर योर लिप्स, पिंक लोटस। नीचे फिल्मों के गाने के नीचे टेलीविजन वगैरह में आते रहते गूगल का तर्जुमा। तेरे हम चाहें गुलाबी कमोदी, व्हाट आर योर लिप्स, पिंक लोटस। वो माना क्या है इसके, अर्थात क्या है और उसका तर्जुमा क्या है, वो बहुत सारे लोग तर्जुमा करने लगे इसका। इट इज वेरी रॉन्ग टू यूज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गूगल का ना करें। अब बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही रिपोर्ट्स के लिए। उसके बाद वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी। बहुत सारे रिपोर्टर्स क्या करते हैं, दूसरों से ले लेते, ये वक्त पर नहीं जाते। आज जैसा हमारा प्रोग्राम 10 बजे का था, 10:30 बजे शुरू हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर को बहुत ही वक्त का पाबंद होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक शेर याद आ गया, ईमान व ईखान की सौगंध नहीं है। ईमान सौगंध होता खत्म, ईमान और ईशान की सौगंध नहीं है, मुस्लिम कभी औसात का पाबंद नहीं है। ये माना नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, यानी मुसलमान जो है उसका पाबंद नहीं है, 24 घंटे काम करने वाला। लेकिन आप रिपोर्टर्स को वक्त पर मामला पहुंचा दिया, हुई वारदात कोई ना के वास्ते दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप गए, मैं नहीं गया, मेरे चैनल पे आपसे न्यूज देता हूँ, आप थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते दीजिए,
ظاہر سی بات ہے آپ بھی بتائے وہی بتائے تھے جو آپ محنت کر کے لائے ہیں، جب بغیر محنت کے دکھائے گا ایسے آپ پھر پوائنٹ چھپا دیں تو دوسروں پر ڈپینڈ نہیں ہونا ہے. آپ کو خود جہاں بھی ہو، جتنی بھی دور ہو، جیسے بھی حالات ہوں، وہاں جانا چاہیے. آپ کو وقت پر جانا چاہیے اور وقت سے پہلے جانا چاہیے، بہت ضروری ہے. اور رپورٹ میں ویسے ہی نہیں مل جاتے آپ اس کے لیے کھوجنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، محنت لگانی پڑتی ہے. اور 5-10 منٹ میں ایپلی بات ختم کرتا ہوں. امپورٹنٹ پوائنٹ رپورٹ ہے کہ اطلاعات تو آپ کو خود نہیں ملتی، آف انفارمیشن. آپ کو جانا پڑتا ہے انفارمیشن کی تلاش میں. بیٹھے بٹھائے دوسروں پر بھروسہ کر کے آپ نیوز کبھی مت بنائیں. آپ اپنے طور پر جائیں گے، اپنے طور پر لکھیں گے اور اپنے طور پر پیش کریں گے. دوسروں پر ڈپینڈ نہیں ہوں گے، ورنہ جو ہے اہم باتیں چھپا دیتی ہیں تو آپ کو نہیں بتا دیتے. اس کے بعد کتنی اہم ہے نیوز دینا ہے نہیں دینا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو بھی کرنا ہے. اور کل ایک بات بتا رہے تھے، آپ اس کو بھی یقین بہت ضروری ہے. آپ جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ پیش کریں، اپنی رائے اس میں ظاہر نہیں کر سکتے. بہت سارے رپورٹ میں بتا دیتے آپ الگ سے لکھ سکتے ہیں، اپنا نظریہ لکھ سکتے ہیں. ٹائمس آف انڈیا دیکھا، ٹائمس آف انڈیا میں خبر دے دیتا ہے جیسی ہے جو بات ٹائمس ویو بن کر بازوشی ایک چوکٹا بنا کے ہمارا نظریہ کیا ہے وہ بھی لکھتا ہے. یہ کام ہر صحافی کر سکتا ہے. آپ رپورٹر کر رہے ہیں، کوئی واقعہ دیکھیں آپ کی پسند کا ہو یا ناپسند کا ہو، آپ جیسا ہے ویسا لکھیں اور اپنی رائے الگ لکھیں. وہ نیوز بھی ملا کے نہیں لکھنا چاہیے، وہ نیوز میں ملا کر ہرگز نہیں لکھنا چاہیے. آپ کو اختیار ہے کہ ایک الگ چوکٹے میں اپنی رائے لکھیں، ہماری رائے بول کر لکھیں. نیوز جیسی ہے ویسی، آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے وہ بات دوسری ہے. لیکن نیوز لکھنے کے بعد اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف میں بھی اوریجنل نیوز میں تعریف بھی نہیں آنا چاہیے، اس پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. تعریف بھی کرنا ہے یا تنقید بھی کرنا ہے تو الگ ایک چوکٹ میں آپ اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں، نہ کہ نیوز میں. یہ بہت ضروری ہے رپورٹرس کے لیے. اس کے بعد اس کی پابندی کا تو بولنے میں، لیکن افسوس کیا ہے، میں ہمارے اخبار کی بات کر رہا ہوں، دوسرے اخباروں کی بات کر رہا ہوں. اب کیسا ہے نیمن، آپ کو تو وقت پر جانا ہی ہے یوٹیوبرس کو، لیکن جو رپورٹنگ کرتے تھے اخباروں کے لیے کبھی وقت پر نہیں جاتے، یا تو آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے یا 1 گھنٹہ لیٹ جاتے. وہ وقت پر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں دوسری بات ہے، لیکن ہمارا وقت پر ہونا بہت ضروری ہے. وہ بہت بہت ضروری ہے وقت پر جانا. اور ایک اسٹوری مکمل ہونے تک اس کو باقاعدہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے. آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی قتل ہو گیا، آپ بتا کر خاموش ہو گئے. اب فار ایگزامپل 1-2-3 دن پہلے بڑی طرح پٹائی ہوئی ایک بچی کی عربی مدرسے میں بنگلور. آپ خالی اتنا دکھا کر کہ بچی کی پٹائی میں دکھا کر اس کے بعد چھوڑ دیتے. اب اس کے بعد کیا ہوا، تجسس رہتا ہے دیکھنے والوں میں، تبھی آپ کا چینل جو ہے فیمس ہوگا. آپ اس کے بعد اس کو ارسٹ بھی کریں، بچے کو پولیس اسٹیشن کو بھی لے کر. اب وہ بہت سارے چینلس میں آئی گئی اس کی گرفتاری کی گئی، خالی وہ مارا پیٹا وہ دکھایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم ہوا، اس لیے کہ بہت سارے چینل اس کے بعد کیا کام نہیں کیے. یہ اسٹوری مکمل ہونے تک آپ اس کا برابر فالو کریں. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، کہیں جا کے ختم ہوتی ہے، وہاں تک سلسلہ آپ کی خبروں کا جاری رہنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ڈونٹ اینڈ وتھ دی فرسٹ پارٹ آف دی نیوز. You have to follow it till it gets end. آخر تک آپ کو جانا بہت ضروری ہے، اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے. اور صحیح رپورٹنگ کے لیے آپ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. بار بار بول رہا ہوں میں، زبان کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. زبان جتنی بار آپ پڑھتے ہیں اتنے ہیں. جملے چھوٹے چھوٹے ہونا چاہیے، نہ کہ لمبے لمبے. جتنے جملے چھوٹے ہوں گے اتنے صحیح ہوں گے. لمبے جملے لکھنے میں یا بولنے میں جو ہے غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. شارٹ سینٹینسز، مختصر جملے، بجائے لمبے جملے بولنے کے چھوٹے چھوٹے جملے کٹ کر جملے بتائیے. سمجھنے والوں کو بھی آسان ہوگا اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. لمبے جملوں میں جو ہے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ چھوٹے جملوں پر انحصار کیجیے، زیادہ لمبے نہ ہوں.
पैराग्राफ अगर बोले वो भी छोटे छोटे होना चाहिए, बोलने के वक्त भी टहल टहल कर। अगर आप सही मानों में अच्छा बोलना चाहते हैं तो यू लिसन टू दिलीप कुमार साहब, इसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप दिलीप कुमार साहब की तस्वीर सुनिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बात खत्म होगी, लेकिन इतने बासुस होते हैं आप सुनने वाले को एक एक लफ्ज समझ में आता है। तो यूट्यूब पर दिलीप साहब की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, आदमी जाते हैं, आप सुनिए उनके अंदाज गुफ्तगू, बात करने का सलीका, कितना ठहरते हैं, कितना वक्त लेते हैं, कितनी आसानी से बोलते हैं, कितनी देर में बोलते हैं, बहुत अच्छा सीख सकते हैं। या यूट्यूबर्स के लिए बहुत जरूरी है। और बाद यूट्यूबर्स में देखता हूँ 15 मिनट की वीडियो 10 मिनट में वही रहती है, सही है। हाँ, बैकग्राउंड समझाने में या न्यूज के बारे में समझो, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्या नाम सबसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, सब किसी बात पर बात कर रहे हैं, तो मैं यूट्यूबर हूँ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल, आप देख रहे हैं हमारा चैनल, उसमें वो है, ये है, वो है, वो आए हैं, बता रहे हैं, ये बेचारा 5 मिनट ये 10 मिनट के बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आप 2-3 जुमलों में आप अपनी बात खत्म करके उसको पेश कीजिए, जिसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, जिससे बात करना जरूरी है। बैकग्राउंड इतना बोलते हैं कि वो 5 साल से उनकी बात खत्म हो जाती है, 10 साल से ये बोलते हैं 15 साल में पूरा। तो बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि किसी की दिलचस्पी ना हो, वरना जो है बहुत सारे हैं जो अपना ज़्यादा इंट्रोडक्शन में या बोलने में लगा देते हैं, जो असल होता है वो पीछे रह जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने मेरे साथ हुआ, बात करने नहीं आता था, यानी मुक्ता वो बात कर रहा था, तो एक साहब मुझे बताए कि खान साहब का जाके हमारे गाँव में बता दीजिए कि मेरी वालिदा बहुत सीरियस है, बहुत आफिस से आप बेटे को क्या है कब क्या होता, तो बातें सुनता हूँ। अब मेरे खुशी होता है डाइट बोलने के लिए, तो भाई कहता था इतना इतना लंबा काम बोल सब डाइट को होते जगह होगा आ जाते ऐसा भी अच्छा है मुख्तसर बोल देता हूँ, इनका इंतखाब हो गया, अच्छा है। सुर्खियों के बारे में, सुर्खियाँ भी जो है यूट्यूब में हो या अखबार में हो, दिलचस्पी सुना। एक बार मैंने सुर्खी का डेफिनेशन पूछा था, कभी किसी ने पूछा है कि सुर्खी किसे बोलते हैं, मेरे सिंगर थे रात इंचार्ज साहब, मैंने उनसे पूछा कि सुर्खी किसे कहते हैं, मैं और वो दोनों साथ जा रहे थे, मैंने पूछा था सुर्खी का डेफिनेशन क्या है, हाउ डू डिफेंड, तारीफ क्या है सुर्खी की, हाउ डू डिफेंड हेडलाइन। तो बड़ा अच्छा समझा मुझे, यूं मारा मैं पढ़ कर देखा, लेकिन जैसे ही मारा मैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, ये सुर्खी जो होती है और उसमें तजस्सुस पैदा हो जाना चाहिए कि क्या हो सकती है न्यूज, तो ये पीट कर जो थपके मिले वही सुर्खी है। हाँ, उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो वो उसकी पाबंदी है, 2 मिनट और है, मैं देख रहा हूँ कौन सी इम्पोर्टेंट बात है। 1 घंटे का वक्त था, वापस 10:30 बजे शुरू हुआ, 11:30 बजे बेदार तो नहीं हुए, अच्छा। और रिपोर्ट आप एक बार नहीं 2-3 बार लिखना है। अगर आप अखबार के लिए लिख रहे हैं तो एक बार रिपोर्ट लिखो, फिर एक बार लिखो, पढ़कर फिर एक बार, 3 बार कम से कम, अगर नए हैं बिल्कुल स्पीड में तो 3 बार रिपोर्ट अपनी खुद लिखकर फिर लिखिए, उसके बाद जो बात पैदा होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपको खुद अपनी गलती का एहसास होता है। हम उमूमन क्या करते हैं, एक बार लिखकर रिपोर्ट भेज देते हैं, वो गलत तरीका है। नए लोगों के तजुर्बा है बहुत सारे, लेकिन मैं आज भी लिखता हूँ, लेकिन लिखने के बाद पढ़ता हूँ, फिर जुमले भी दुरुस्त करता हूँ, और कभी कभी अच्छे जुमले आते हैं तो बदल देता हूँ, 2-3 बार मैं भी पढ़ता हूँ। फिर 35 वर्ष बाद आज भी जब अनकही का काम लिखता हूँ तो पढ़कर फिर उसमें जुमले बदल कर लिखता हूँ।
तो ये बहुत अच्छी आदत है, आप भी इसे अपना बना लें, आदत कर लें, 2-3 बार लिखकर। जी आप जो बताएं आप ये कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, सही कैसे कहीं आप बोर तो नहीं है या आप बोर हो रहे हैं, बोर कौन सा सही है ना? नहीं, मैं नहीं समझा। जैसा कि आप अभी ने बताया कि आपने सिर्फ बोर तो नहीं हो रहे। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे। तो कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे, डेटा पास हो सकते हैं। हो सकता है। ये सही है क्या वो सही? दोनों सही, दोनों सही। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे। यस, उसके बाद 2-3 बार पढ़े, उजला से काम ना लें, और आज का काम कल पर ना छोड़े, वो तो जरूरी है। अब तो न्यूज पुरानी जो है ये दूसरे यूट्यूबर्स मैदान मार लेते हैं, तो अब वो तो नहीं रहा, लेकिन लिखने वाले के लिए है ये कि देर ना करें लिखने में। दूसरे अखबार में आ गई तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यस, उसके बाद आप लिखे, 2-3 बार लिखकर अच्छा से ही करें, अखबार को भिजवा दीजिए। उसके बाद दोबारा पढ़ें उसको, अखबार में आने के बाद कोई तब्दीली हुई है क्या आपकी जिंदगी में, इससे जो है आपकी जबान और बेहतर होती है। लेकिन हमारे पास क्या है, रिपोर्ट नहीं पढ़ते, एक बार एडिटर को दे देते हैं, वो क्या करेक्शन करता है, कहाँ जुमले बदले हैं, कहाँ लफ्ज़ बदले होने के। लेकिन इसकी आदत डालो कि मेरे लिखने के बाद एडिटर साहब ने क्या तब्दीली की है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद उसी न्यूज को आप दूसरे रिपोर्टरों की न्यूज से मुआवजा करना भी जरूरी है। एक वाकया हुआ, कोई वाकया हुआ, आपने भी पेश किया उसको, एक और चैनल वाले ने भी पेश किया, तो दोनों को कंपेयर करें कि वो कहाँ बेहतर था, या मैं बेहतर था, या वो अच्छा था, या मैं अच्छा था। दिस कंपैरिजन विल हेल्प, ये बहुत जरूरी है। और न्यूज में भी, अखबार में भी, मैंने कैसा लिखा है, दूसरे अखबार वाले ने कैसा लिखा है, अंग्रेजी अखबार वालों ने कैसा लिखा है, उससे जो है आपकी रिपोर्टिंग और बेहतर हो सकती है। कंपैरिजन बहुत जरूरी है। खुद लिखकर मुतमईन हो जाना कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, गलत है। यू कंपेयर what is that you have written and how some other people have written the same news, in what way they have written. This is also very important. यूट्यूबर्स के लिए भी, अखबारों को लिखने वालों के लिए भी कंपैरिजन बहुत जरूरी है। उसके बाद और है 3 बातें आ गई, और जितने मौके आपको मिलते हैं उतने एडिटर को नहीं मिलते। रिपोर्टर्स जितने जाने पहचाने हुए आते हैं वो एडिटर्स नहीं मिलते। आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं लोगों से दोस्ती बढ़ाने के, आप इसका नाजायज फायदा ना, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। वरना जो है आप जो चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर नाजायज फायदा उठाएं तो वो जो चाहता है वो लिखना पड़ेगा, वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। आप एक बार हट गए तो आप उससे नहीं लिख सकते, वो जो लिखवाया जाता है वो लिखना पड़ता है। 37 बरस में अल्लाह गवाह है, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं जो चाहा वही लिखा, जो दूसरे ने चाहा कभी नहीं लिखा। ये बहुत जरूरी है, रिपोर्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। एडिटर्स से कम शनासाई होती है, लोगों की जान पहचान भी कम होती है। बहुत सारे जगह पर एडिटर मालूम भी नहीं होता कौन एडिटर है। रिपोर्टर्स को जो है ज्यादा मौके मिलते हैं, लेकिन कभी अपने रिपोर्टिंग की पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। वरना जो है, जैसा कि मैंने कहा कि आप वो नहीं लिख सकते जो लिखना चाहते हैं, इसलिए बात का ख्याल रखें। आप बड़ा अच्छा जुमला है आपके लिए, आप शिकारी बने, शिकार ना। आपको शिकारी होना चाहिए। यू शुड बी ना हंटर, यू शुड नॉट गेट हंटेड। शिकार बने, शिकारी बने, शिकार ना। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस है। शिकारी बने, शिकार ना बने। बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। शिकारी रहे आप, शिकार ना। वरना जो है वो जो लिखाया जाता है वो लिखना पड़ता है। मैं अनीस साहब का
जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। शरफुद्दीन साहब का इतने सीनियर रिपोर्टर होकर भी मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग शरफुद्दीन साहब की होती थी, आबिद साहब भी थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद साहब और माँ साहब दोनों ने ही उनका भी राय बना कर, और आपका तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे 1 घंटा बर्दाश्त किया। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।